Good evening, everyone. Today we have gathered here to share a few wonderful moments with one of the renowned scientists of this country, Dr. Santosh Takle. So he's he is so willing to interact with you students that not me, he eventually calling me for the last 2 days, continuously calling me. So I am honored to get his call. Now to move forward, I request Honorable Principal Sir to welcome the speaker of today's session. Sir, please. I request all the. Good evening, everyone. Today we have gathered here to share some wonderful moment with one of the renowned scientists of this country, Dr. Santosh. Uh, I would not like to take any further moment, so I request our Honorable Principal Sir. I request all the participants to mute themselves. I request all the participants. Misra sir, could you please mute yourself? Suman Misra sir, could you please mute yourself? Okay. Please mute yourself, sir. Thank you. So, without taking too much time, I request our Honorable Principal sir to address the students and welcome the guests, the speaker of today's session. Sir. A very good evening, everyone. Today evening is a very special evening for all of us for this school, DAV Public School, CCL Giridih, Jharkhand. And for students, particularly during school days, students find science as a subject of innovation, and especially astronomy is a very thrilling subject. And when children watch the open sky, they have as many questions as the stars are. they आकाश को देखते हैं, वो मिल्की वे को देखते हैं, तो बहुत सारा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है और वो जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या है, what is the meaning of ever expanding universe and how the stars are formed, what is beyond this galaxy, and so many questions. So today we have with us a renowned scientist of Bhabha Atomic Research Center, Sri Santosh Takle ji, who is in this field, and for us it is a matter of great pride that he has consented to be a part to share or guide our children. So, sir, I am very much thankful that in a simple invitation or request through the mail that you have sent one day, you immediately responded, and the entire teaching fraternity are also associated in this webinar. They are also waiting for your words. So I heartily welcome you in this webinar, sir. And hundreds of students, I feel that they would be watching through YouTube live also. Though in a very short notice, and during these days we are having our board examination and preparation for internal school examination. But in spite of that, your consent and your presence
has motivated hundreds of students to watch this, and possibly this message will go a long way through you in developing the scientific temper among the children, and also think innovatively in future. So I welcome Dr. Santosh Takleji, a senior scientist of Bhabha Atomic Research Center. Sir, I'm very much thankful, and I wish that children will definitely get benefit out of it. And the mission that you have taken since long, you have addressed lakhs of students in thousands of schools. So this also shows your concern about the children. So definitely this will be a valuable asset for all of us. Sir, please. Thank you, sir. Tiwari sir, shall I start? Okay. So, students, teachers, principal sir, Tiwari sir, I should express one important statement here, that this lecture could happen only because very prompt and fast response from the principal sir, and equally important reciprocation or cooperation from the Tiwari sir. Normally, school colleges are very busy, obviously, because our system is so much that they are busy in educating, they are busy in handling administrator, they are handling government rules, regulations. But special case to your school is one email, immediate response from principal sir, immediate response from Tiwari sir, and today within a short span of 1-2 days, I am with you. So today, suppose I speak with you for 45 to 50 minutes. You like something, all credit goes to principal sir and Tiwari sir. And something, suppose you don't like or you feel that it is arguable, then obviously I'm available. At the end of session, I will give you my WhatsApp number. I'll give you my email address. I'll give you my Google feedback link so that you can put good, bad, whatever you feel on that particular feedback link. So now let's go to the very important part, that what I'm going to cover, why principal sir is so impressed that I'm on some mission, which is my personal mission. But I feel that it is not my personal mission. It is a mission of humanity. Why? Let's see the topic, universe and scientific temper. As sir rightly said, we know Milky Way, we know universe. DAV students as such are always above average student. और ये normally I'll be speaking in Hindi, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं बोलूं वो बच्चों को समझे, उनके दिमाग हाँ जिंदगी भर बैठे, ताकि उनको हर मकाम पे जिंदगी में जब भी कोई तकलीफ हो तो उनको ये लगना चाहिए कि चलो मैं किस तरीके से इसके बारे में सोचूं। तो सोचना है वैज्ञानिक सोच के तरीके से, और यही आज का हमारा टॉपिक है। भले हम मिल्की वे गैलेक्सी को भी टच करेंगे, ओरायन को भी टच करेंगे, हिंदू धर्म को भी टच करेंगे, इस्लाम, ईसा, क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, सारी चीजों को आज एक डब्बे में डाल के 1 घंटे में मैं आपको वो काढ़ा पिलाने वाला हूँ, और मुझे गारंटी है कि सबको मजा आएगा, पसंद आएगा। एक ही चीज नहीं करनी है, माइक ऑन नहीं करना है, प्रेजेंट बटन नहीं दबाना है, इससे आपको मजा आएगा बट दूसरों को तकलीफ होगी। और हमारा इंसानियत के नाते पहला धर्म है कि भाई खुद को तकलीफ हो जाए चले, बट दूसरों को हमारे वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सो इफ दिस इज द टॉपिक जो मैंने आपके सामने रखा है, तो इस दुनिया की सफर करने के लिए अगर वैज्ञानिक सोच से हमें जाना है, बट कन्वेयंस तो कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि जो थोड़ा फास्ट हो, एडवांस्ड हो, और सच मायने में ह्यूमन सिविलाइजेशन के एडवांसमेंट को, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को इस जमाने में रिप्रेजेंट करे। तो मैंने आपके सामने रखा स्पेस शटल सिस्टम। जो बच्चे यूट्यूब लाइव पे है उनको थोड़ी मुश्किल होगी, बट अगर यहाँ पे 100 बच्चे हैं तो यू कैन पुट योर आंसर्स इन अ चैट बॉक्स। इफ यू आर सीइंग स्पेस शटल सिस्टम, तो ये स्पेस शटल सिस्टम को एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल मानते हुए मैं अगर आपको पूछूं कि ये सिस्टम का वजन कितना होता है, तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है, माइक ऑन नहीं करना। बट मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस 1 घंटे में कवर करना है। तो चलो अगर मान लेते हैं कि 40-30% बच्चों को इसका वजन पता नहीं है, तो हम चलते हैं कुछ और चीज पे जिसका वजन सबको पता है। लॉकडाउन थोड़ा खुल रहा है, स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, हम सब लोग मार्केट भी जा रहे हैं, बट अपने देश रूल्स बनते हैं, लीगल सिस्टम है, बट लोग फॉलो नहीं करते।
सोचो आप गर्दी के दिन, कुछ भीड़ भड़ के दिन मार्केट चले गए मोटरसाइकिल पे मम्मी डैडी के साथ, और सडनली कोई बीच में आ गया, मोटरसाइकिल रास्ते पे गिर गया, क्या आप मोटरसाइकिल एक हाथ से उठाओगे? ये समझिए कि आप एक हाथ से मोटरसाइकिल उठा नहीं पाओगे, क्योंकि मोटरसाइकिल का वजन ही लगभग 100, 150, 200, 300 किलो है। तो जब आप जैसा सर, माइक सब लोग बंद करिए, प्रिंसिपल सर का माइक शायद ऑन, या इट्स ओके। तो आपको मैं पूछा मोटरसाइकिल का वजन, आपने बताया 100, 150, 200 किलो, उदाहरण दिया कि सपोज रास्ते पे गिर जाए सडनली, तो क्या आप एक हाथ से या 2 हाथ से उठा पाओगे? आपने जवाब दिया नहीं, क्योंकि आपका वजन है 50, 60, 70 किलो, और एक 100, 150 किलो की मोटरसाइकिल उठाना शारीरिक क्षमता के परे है। तो मैंने पहला सवाल इसलिए पूछा था स्पेस शटल सिस्टम का वजन, कि स्पेस शटल सिस्टम अगर आज के 21वीं सदी के इंसान के टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का एक उत्तम उदाहरण है, तो ये जानना जरूरी है कि काम क्या करता है। इसी स्पेस शटल सिस्टम से आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च होता है, इसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम हवामान का अंदाजा बताते हैं, इसी से टीवी चलता है, मोबाइल फोन्स चलते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक में मिलिट्री को सपोर्ट मिलता है, कितनी सारी चीजें, इवन आजकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ऊपर से सर्वे भी इन्हीं से किया जाता है। सो मेनी थिंग्स वी डू बाय दिस टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को, बड़े बड़े महात्माओं को उपलब्ध नहीं था, पर आज हमको उपलब्ध है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का या मैन्ड मिशन होते हैं, जो बहुत सारे इंटर प्लैनेटरी मिशन होते हैं, ये सारा वजन आसमान में जाता है तो कितना किलो है, और जाता है तो भाई हमारी शारीरिक क्षमता से जाता है कि बौद्धिक क्षमता से जाता है? तो पहले वजन जान लेते हैं। आपके सामने जो चित्र है उसमें 2 SRB है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर, एक स्पेस शटल है, दूसरा फ्यूल का टंकी है जिसमें ऑक्सीडाइजर भी है, और तकरीबन वजन है 6 लाख किलो, 6 लाख किलो SRB का, तो 12 लाख किलो, टंकी का हो गया 8 लाख किलो, स्पेस शटल का हो गया तकरीबन 1,72,000 किलो। तो 21 लाख से 30 लाख किलो वजन आसमान में जाता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है, और वो अजीबोगरीब कारनामे करता है, जिसको हम आज की दुनिया का विज्ञान युग बोलते हैं। तो भाई 21 लाख किलो वजन आसमान में हमारी बौद्धिक क्षमता का प्रतीक दिखाता है या शारीरिक क्षमता का? ऑब्वियस आंसर इज इट इज द मेंटल एबिलिटी इंडिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टुडेज ह्यूमन जनरेशन। तो 21वीं सदी का इंसान ये अजीबोगरीब कारनामे कर पा रहा है, तो क्या यही हमको दुनिया में भी देखने मिलता है कि जो विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वैज्ञानिक सोच से चल रहे हैं? नहीं, लोग नींबू मिर्ची बेच रहे हैं, काली पुतलियां बेच रहे हैं, कुछ कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकत करते हैं कि लोगों को जिस पृथ्वी पे वो है और खुशी से जी रहे हैं, ना पृथ्वी से प्यार है, ना इंसानी सभ्यता ने उनको यहाँ तक लाया, उन इंसानों के प्रति आदर है। वो कर आदर किसके प्रति दिखा रहे? कुछ ऐसी सुपर नेचुरल चीज जो दूसरी या तीसरी फेल बाबा बुआ अम्मा टम्मा मुल्ला मौलवी ने उनको बता दी, और वो लोग उस पर अंध तरीके से विश्वास रखते। ये आज का रोना नहीं है, ये रोना बहुत पुराने जमाने से आ रहा। तो यहाँ अगर मैंने आपको स्पेस शटल सिस्टम दिखाने की कोशिश की कि 21वीं सदी का इंसान कहाँ पहुंच गया वैज्ञानिक सोच के चलते, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये वैज्ञानिक सोच लाते वक्त या बचाए रखने में हमें बच्चों को क्या सिखाना। तो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, मामा मामी हो, चाचा चाची हो, सबको जब यंगस्टर्स को संस्कार कर रहे हो तो ये बात जिंदगी में याद रखनी है, चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक। भाई बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो आपके साथ कुछ गलत होगा, ये बताने से अच्छा उनको ये बताओ कि रास्ता क्रॉस या कभी भी आप इधर से उधर जा रहे हो तो आपको सेफ्टी के नियमों का पालन करना है। आपके संस्कार उनको ये हिदायत देनी चाहिए कि भाई रास्ता कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उस पे पब्लिक को कानून के नियमों के अनुसार चल रहा है, तो एक्सीडेंट ना हो, कोई ऐसी वारदात ना हो जिससे जिंदगी में आपको आगे जाके या समाज को तकलीफ। ये हरकत नहीं करनी चाहिए कि कोई प्राणी रास्ता काट दिया तो आपको तकलीफ हो। तो ये हाउ टू थिंक व्हाट टू थिंक पे ही आज का लेक्चर चलेगा, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसी हाउ टू थिंक व्हाट टू थिंक के एनालिटिकल रीजनिंग और सर्कमस्टेंशियल और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड थिंकिंग को बोला जाता है साइंटिफिक टेम्पर। ये क्या करता है? ये नए नए आविष्कारों के पीछे जो वैज्ञानिक एविडेंसेस है वो ढूंढता है। ये कोई भी चीज प्रूफ के बगैर एक्सेप्ट नहीं करता, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा।
मैं यही बताऊंगा कि ये सोच हमको जिंदगी में एक रैशनल और वेल इन्फॉर्म चॉइसेस करने में मदद करता है। मतलब क्या है ये है कि भाई किसी का सोमवार को एग्जाम है और किसी ने बोल दिया भाई आज तो आपको जर्नी करना सही नहीं, तो भाई सोमवार को जो साल भर मेहनत करके एग्जाम देना है वो देना जरूरी है, कि किसी ने बोल दिया भाई आज आपका जर्नी करना शुभ नहीं है तो आपने एग्जाम को बाय बाय बोल दिया। तो ये है रैशनल एंड वेल इन्फॉर्म चॉइस कि भाई मैंने मेहनत की है तो मेरे मेहनत का रिजल्ट देखने के लिए मुझे एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। और इसमें अगर कोई इरेशनल फियर है तो वो इरेशनल फियर को अपने काबू में रखते हुए मैं सही तरीके से डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा भी और सेफ सिक्योरली घर पे भी पहुंचूंगा। इस कोई उटपटांग हरकत न करे तो अनसेफ जिंदगी के बहुत सारे जो पहलू है वो वैसे ही निकल जाते हैं। मैं ये जो सारा भाषण बोलने वाला हूँ, जो मेरी इच्छा है कि समाज के हर घटक तक, मतलब हिंदुस्तान के नहीं, पाकिस्तान के नहीं, बांग्लादेश के नहीं, नामीबिया हो या लैटिन अमेरिका हो, सबके पास, हर इंसान के पास ये सोच पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो संविधान में यही लिखा है, हमारे संविधान का राज्य घटना का क्लॉज नंबर 51AH कहता है, इट इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू इनकलकेट, फोस्टर एंड प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग। और ये जिन्होंने लिखा उनकी वैज्ञानिक सोच के बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेरे उपस्थिति की जरूरत नहीं है। आप पन्ने खोलोगे जिंदगी के और अपने किताबों के और अपने संविधान के तो आपको सही में पता चलेगा। अभी ये सब साइंटिफिक टेम्पर जो सुबह से शाम हम लोग और पैदा होने से मरने तक सिर्फ विज्ञान और विज्ञान का ही इस्तेमाल करते हैं, तो वैज्ञानिक सोच क्यों नहीं रखते? इसका कारण है हमारे आजू बाजू में जो सोशल एनवायरनमेंट है और हमारे अर्ली लाइफ में जो एजुकेशनल एक्सपोजर है, इसमें कहीं ना कहीं कहनी और मतलब कथनी और करनी में फर्क है। इक्लिप्स के बारे में ज्योग्राफी में, साइंस में पढ़ाने वाले टीचर अगर घर जाके कुछ ऐसी हरकत करे कि जो लॉजिक या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से धरे नहीं है, तो शायद बच्चों को दुविधा आ सकती है कि मैं करूं तो क्या करूं, ये बात सुनूं कि वो बात। तो एज अ टीचर आपने सर्विस के तौर पे ये चूज किया कि नोबल सर्विस के तौर पे चूज किया, या समाज को एक दिशा देने के तौर पे ये प्रोफेशन चूज किया, सोच और चॉइस आपका है। बट आप जो काम कर रहे हैं उससे आप सही मायने में पूरी दुनिया में अमन और शांति ला सकते हो अगर आपके सोच में विज्ञान। तो लेट अस सी, इट इज कंसिडर्ड मोरल क्राइम टू क्वेश्चन व्हाट इज बीइंग प्रीच्ड एंड रिटन इन रिलीजियस बुक। सब धर्मों को एप्लीकेबल है, तो इसमें किसी को इमोशनल होने की जरूरत नहीं और बुरा मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज अगर मैं आपको कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल बता दूं तो चांसेस है कि 2 साल बाद उसके ऊपर एक अपडेट आ जाता है, 20 साल बाद वो पूरी तरीके से खारिज होकर नई चीज आ जाती है। तो कोई बोले कि हमने 20 साल पहले किताब लिखा, कोई बोलेगा 200 साल पहले लिखा, कोई बोलेगा 1400 साल पहले लिखा, कोई बोलेगा 2000 साल पहले, और कोई बोलेगा 4000 पुरानी हमारी सभ्यता है। तो भाई वो जो किताब है उसमें बहुत सारा कंटेमिनेशन आ गया, और शायद ये भी हो सकता है कि बहुत सारी इलॉजिकल चीजें भी हो। इससे किसी को अपमानित होने की, क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। बदलाव ही संसार का नियम है, ऐसा हम ही तो खुद कहते हैं। सो लेट्स गो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये जनाब जो आपके चित्र में दिख रहे हैं, ये आपके किताबों में होते हैं। ये अगर सपोज यूरोपियन समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं तो हिंदुस्तान ने भी काफी दिए, लैटिन अमेरिका ने भी दिए, अमेरिका ने भी दिए। सब दुनिया में मेहनती लायक लोगों का बहुत सारा स्टॉक है, और उसकी वजह से हम भाई भाई मेरे माइक बंद करो। हाँ, इतनी समझ तो होनी चाहिए। आपकी बदतमीजी आज के डेट पे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये देखिए कि यूट्यूब लाइव भी चल रहा है, मैं भी बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग में रहेगा। तो ये छोटी बात तो बड़े बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि यू कैन नॉट मिसबिहेव। एनीवेज, सम एक्सेप्शंस ऑलवेज डोंट प्रूव द रूल, ऐसा है। एनीवे, प्रूव द रूल। तो चलो, मैं बोल रहा था ये भाई साहब जो है ये गैलीली गैलीलियो, 400 साल पहले इन्होंने, जो हंस लिपर्से नाम के साइंटिस्ट ने लेंसेज बनाए थे, उनका उपयोग करके एक छोटी सी दूरबीन बनाई जो उनके साथ चित्र में दिखाई है। और इस दूरबीन का इस्तेमाल करके उन्होंने एक खोजी दृष्टि से आसमान की तरफ कुछ सोचने की, समझने की कोशिश की, और उनके सामने जो रिजल्ट्स आए वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बट उसके पहले बगल में जो दूरबीन है वो मेरी है। इसी तरीके की दूरबीन आपके कॉलेज, स्कूल में भी है, और तिवारी सब चाहते हैं कि इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मैं मार्गदर्शन दूं। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं सिर्फ भाषण नहीं देता क्योंकि भाषण से राशन भी नहीं मिलता और कुछ नहीं मिलता। मैं भाषण इसलिए देता हूं कि इसी तरीके से आपकी मेरी पहचान हो, और आगे जाके
कभी भी आपको कुछ ऐसा लगे कि मैं आपके काम आ सकता हूं, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि कोई टेक्निकली साउंड और इथिकली करेक्ट आदमी आपके संपर्क में है। तो ये भाई गैलीलियो साहब ने क्या क्या देखा अपनी छोटी सी दूरबीन से, तो ये देखा। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर चंद्रमा है, तो मैं पूछूंगा नीचे क्या है, तो आप बोलेंगे सर कोई स्टार लाइक ऑब्जेक्ट है, तो मैं आगे लेके जाऊंगा और बोलूंगा ये क्या है, तो आप बोलेंगे मून के फेजेस है। फिर मैं बोलूंगा गलत जवाब। क्यों गलत जवाब? क्योंकि पिछला जो चित्र था उस चित्र में आपने जो मून के साथ देखा वो स्टार नहीं था, वो वीनस नाम का प्लेनेट था। इसको आप हिंदी में भोर का तारा वगैरह बोलते हैं, हमारे यहाँ शुक्राची चांदनी बोलते हैं, बट चांदनी का मतलब होता है तारा, जबकि है प्लेनेट। और ऐसे टिमटिमाता है, ऐसे ट्विंकल करता है कि ट्विंकल खन्ना भी शर्मा जाए। तो हमने तो बचपन में सुना कि भाई तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स नहीं करते, जबकि ये भाई साहब तो एग्जैक्टली अपोजिट है और यही सदियों से पढ़ाया जा रहा है। यही प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली चीजों को न समझने वाले व्यक्ति जब दूसरों को चीजें समझाने लगते हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग टीचर्स, आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ, सिस्टम एंड होल सोसाइटी, कि दे डोंट कीप अपडेट विद द करंट एरा। ये आज का ये मेरी तरफ, और मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, मुझे बहुत अकल है, ये नहीं बताना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टार ट्विंकल वाला फंडा सचमुच मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि हॉराइजन के आसपास और बहुत सारे तारों के साथ प्लेनेट भी जब हॉराइजन के आसपास होते हैं तो टिमटिमाते हैं। जैसे आप वीनस को देखो, तो ये वीनस नाम का प्लेनेट है। शॉकिंग है कि ये भाई दिख रही है वो वीनस की फेजेस, इसी तरह मर्क्यूरी की भी फेजेस होती है। ये मैं आज बता रहा हूं, बट 400 साल पहले छोटी सी दूरबीन के माध्यम से गैलीलियो ने देखा। ये जो है ये जुपिटर है, इसके ऊपर जो 4 शैडोज दिख रहे हैं वो उसके प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स है, आयो, यूरोपा, गनीमेड एंड कैलिस्टो। 400 साल पहले गैलीलियो ने देखा। इसी तरीके से गैलीलियो ने सैटर्न के रिंग्स देखे, बट उनको ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि दूरबीन काफी छोटा था। फिर उसी तरीके से उन्होंने सन के ऊपर जो सन स्पॉट है वो देखे। इसी तरीके से कोपरनिकस ने बताया हुआ हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्री सिद्धांत उन्होंने प्रूव किया। और इतने सारे अजीबोगरीब डिस्कवरी के बाद, सही डिस्कवरीज के बाद, गैलीलियो को जिंदगी के आखिरी 16 साल जेल में डाला गया। वो आखिरी 5 साल वो अंधे थे, फिर वो मर गया और उनके नाम का किसी ने एक स्टैचू भी नहीं बनाया, क्योंकि जो वो बोल रहे थे वो उस जमाने में प्रचलित धर्म ग्रंथ और सो कॉल्ड फिलोसॉफी के खिलाफ था, जबकि वो सही थे। बट उन्होंने जो बोला और जो सत्य था वो आगे जाके फाउंडेशन बन क्या हो रहा है सर? आज के आधुनिक विज्ञान के आविष्कारों। आज हम जो घर पे रहते हुए स्वर्ग सुख है ना, एक तरीके से हेवनली लाइफ है। कहाँ महान लोगों ने, बिरसा मुंडा जी ने या छत्रपति शिवाजी महाराज ने या पोरस ने या आचार्य चाणक्य जी ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने टीवी देखा था क्या? उन्होंने कभी हवाई जहाज का सफर किया था क्या? तो आप सोचिए कि हम जो 2000, 3000, 4000 में लग्जरी अफोर्ड कर पा रहे, वो लग्जरी सिर्फ और सिर्फ पुराने जमाने के लोगों के मेहनत के कारण। तो अगर आपको जिंदगी में कोई कुछ पूछे कि क्या बनना चाहते हो, तो पहला जवाब ये होना है कि मुझे मेहनती बनना, एक लायक सद्गुण वाला इंसान बनना। तो अगर ये सारी चीजें गैलीलियो ने इतने साल पहले देखी फिर भी उनको तकलीफ हुई, तो सचमुच हर मेहनत करने वाले आदमी को कहीं ना कहीं वो सत्य की राह पे चले तो तकलीफ होती है क्या? मोटा मोटी तो होती ही है। आप तैयार रहिए, बट वही जिंदगी का सही मायने में सुख है कि हम तकलीफ करते हुए दूसरों को सुख में देखने की कोशिश करें। यही सब लोगों ने किया, फिर वो मेरी क्यूरी हो या फिर वो एपीजे कलाम साहब हो या फिर वो मदर टेरेसा जी हो। बहुत सारे नाम है, हिंदुस्तान में तो नामों की कमी नहीं है, क्योंकि काम ही उतना बाकी है। तो काम आपको भी करना है, मुझे भी करना है, तो इसलिए पहले अपनी सोच सुधार। तो आज का ये पहला जो हुआ वो प्रीएम्बल था, इसको प्रस्तावना, शुरुआत, इंट्रोडक्शन बोल सकते, पिक्चर का टेलर बोल सकते। अभी हम एक्चुअल पिक्चर में जा रहे हैं। 2 टॉपिक कवर करेंगे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और उससे जुड़ी गलतफहमियां, और वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स और उससे जुड़ी गलतफहमियां, और एक सभ्य सक्षम हिंदुस्तान के युवा को किस तरीके की सोच रखनी है ताकि वो आगे जाके अपने फैमिली को, समाज को, देश को और मानव जाति को कामकार रह सके, उपयुक्त रह सके, उनके काम आ सके। तो शुरुआत करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। आप सबको पता है कि वैज्ञानिक तरीके से बोलूं
तो इस ब्रह्मांड के निर्माण का कारण है, जो एक्सप्लेन करता है थ्योरेटिकली बिग बैंग नाम का थ्योरी। बिग बैंग क्या बोलता है कि आपके चित्र सामने जो चित्र है, उस चित्र में जो दिखाया उस तरीके के किसी ऊर्जा के स्रोत से ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सोचिए आपके ही स्कूल के अगल बगल में कोई छोटी पहाड़ी चोटी है, उसको आप हटा के वहां पे ग्राउंड बनाना चाहते हो या लेबोरेटरी बनाना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने मन में आया तो उसी दिन डोरेमोन को बुला लिया और पूरे चोटी को दबा दबा के एक टेनिस बॉल इतना बना दिया और कहीं फिर झाड़ियों में फेंक दिया। अभी डोरेमोन से हो सकता है क्योंकि वो साइंस फिक्शन का कैरेक्टर है, बट क्या प्रैक्टिकली पूरे पहाड़ को एक टेनिस बॉल इतना बनाया जा सकता है? नहीं। तो पूरे पहाड़ को टेनिस बॉल इतना बनाया नहीं जा सकता, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को नहीं बनाया जा सकता, झारखंड स्टेट को नहीं बना सकता, इंडिया को नहीं, अर्थ को नहीं, सोलर सिस्टम को नहीं, इतने सारे तारों को नहीं। तो मैं सिर्फ उतने सारे तारों की नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सारी चीज इतने से, आपके सामने जो चित्र है उतने से ऊर्जा के स्रोत से आई, and that is explained and well studied and researched under the fundamental Big Bang। अभी उसमें नहीं जाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो लेट्स गो लिटिल फर्दर। कब हुआ ब्रह्मांड का जन्म? इतना साल पुराना है हमारा ये विश्व? जवाब यहाँ है। ये जो चित्र है उसमें दिखाया 13.7 to 13.8 बिलियन ईयर्स बिफोर यूनिवर्स गॉट इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द बिग बैंग। तो अगर 13.8 अरब, उसमें 0.8 अरब का टॉलरेंस, मतलब तकरीबन 14 अरब साल अगर हमारा ब्रह्मांड है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये कब कब क्या क्या हुआ। सो आपकी इस पर्टिकुलर क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं टेम्पररी डोरेमोन से टाइम मशीन उधार लेता हूँ और स्टेज वाइज पीछे चलता हूँ। सोचिए आज से मैं 70-75 ईयर्स पीछे गया तो देश स्वतंत्र होते हुए दिखेगा कि इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में और इस देश को बाद में एडमिनिस्ट्रेटिवली सेफ सिक्योर बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए जिन लोगों ने दिन रात मेहनत की और वो काफी लायक थे, वो सब बीए थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स थे। आज लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स में इसलिए जाते हैं कि बाकी कुछ करने की क्षमता नहीं है तो भाई बीए में चला। तो लोग गाली देते हैं एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को, जबकि गाली देनी है खुद को। कोई लायक बन नहीं पा रहा है तो उसमें 90-95% दोष उसका है, ना कि एजुकेशन सिस्टम का, ना कि माँ बाप का, ना कि सरकार का, ना कि देश का। बट ये समझने में लोगों की जिंदगी निकल जाती है। तो 75 साल पहले अगर देश में ईमानदार लायक लोग थे तो आज भी है और भविष्य में भी है। आपको लोगों को गाली देना बंद कर देना चाहिए। लेट्स गो बैक 75 साल पीछे जाने का 1947 के आसपास में पहुंच गया था, तो और मैं 50-60 साल पीछे चला जाऊं, झारखंड जाऊं तो बिरसा मुंडा जी मिलेंगे। तो भाई उन्होंने भी देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने तरीके से एक रिबेलियन फोर्स खड़ा किया, कोशिश की। यही चीज अगर मैं और पीछे जाऊं 200-250 साल, मतलब आज से 350 साल, तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से मेरी मुलाकात होगी। मैं वही रहता हूं जहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे उनका कैपिटल रायगढ़ फोर्ट है। हमारे यहाँ भी उनके बारे में गलतफहमी है, लोग उनको क्या क्या मानते हैं, पर उनके आदर्श विचारों पे नहीं चलते थे जो उस जमाने में भी 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की रखा करते थे। जैसे गरीबों को तकलीफ न देना, गरीबों को न लूटना, महिलाओं की इज्जत करना और सही मायने में न्याय वाला राज्य प्रस्थापित करना। अभी आजकल कौन करता है? सब लोग अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए। तो इतनी अच्छी समझ जिस राजा की थी, उस राजा के बारे में भारत में ही बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मैं तो अपनी तरीके से दूर करता हूं, बट लोगों को उसमें कहीं और चीजें दिखती है जो उसकी स्वार्थ भावना से प्रेरित है। चलो स्लो नहीं जाएंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अभी 350 साल पीछे गए थे मैं, और 350 तो तकरीबन 600-650 साल पीछे जाऊं तो पंजाब में अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए मुझे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी मिलेंगे। वो धर्म के अधिष्ठान पे चल रहे थे, बट मोटो वही था कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है। चलो मैं आज से 1400 साल पीछे चला गया, मक्का मदीना में पहुंच जाऊं तो पैगंबर साहब मिलेंगे। पैगंबर साहब भी कोई धर्म को प्रचार करने में नहीं लगे थे, वो वहां के आम जनता को साथ में लाते हुए शांति और अमन का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि रेगिस्तान की बंजर जमीन पे 1400 साल पहले जितना खाने पीने का प्रॉब्लम था उसमें लोग सिर्फ मारकाट कर रहे थे, तो उनको शांति और अमन की राह पे लाना था। और इसी के लिए तो इस्लाम को रिलीजन ऑफ पीस बोला जाता है। आज के लोग इस्लाम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आदतें क्या है,
वो कितना गलत सोचते हैं, इससे ओरिजिनल रिलीजन को तो आप गाली नहीं दे सकते, क्योंकि रिलीजन धर्म है ही ध्रुवधारे इति धर्म। मतलब क्या है भाई, एक विवेक धर्म, ताकि सब सुखी संपन्न और शांति का जीवन व्यतीत कर सके, ऐसे राह पे चलना मतलब धर्म। यही जो अगर उसकी सही व्याख्या है तो शायद आज तक और आज भी बहुत सारे लोग गलत राह पे है, धार्मिक होते हुए भी। ये बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं। अगर 1400 साल पहले पैगंबर साहब शांति अमन लाने की कोशिश कर रहे थे, तो 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट कर रहे थे। अगर 2000 साल पीछे जाऊं तो मैं जीरो तक पहुंच गया, अभी जीरो के पीछे जाना है तो मुझे ईसा पूर्व वाली सदी में, BCE, बिफोर क्रिस्ट एरा, क्रिश्चियन एरा में जाना पड़ेगा। सोचो मैं आज से जीरो तक और जीरो के पीछे 260 साल, मतलब 2260 साल पीछे चला, और 2260 साल पीछे जाके झारखंड से सिर्फ नीचे उतरा और मैं उड़ीसा में पहुंच गया। तो मेरी मुलाकात कौन से महान राजा से होगी? बताने की जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, उनको लड़ाई के बाद महसूस हुआ कि शांति ही सब सुखों का कारण है और अशांति और लड़ाई दुखों का कारण है। बट ये सोच आई कहां से? उनके थोड़े पहले अगर 50 साल में पीछे जाऊं तो चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, पोरस, अलेक्जेंडर, ये सब लड़ने वाले लोग मिलेंगे जो अच्छाई के लिए लड़ रहे थे। कुछ लोग अपना अस्तित्व दिखाने के लिए लड़ रहे थे, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का दुनिया जीतने का सपना मेरे सोच के परे है। इंसान को जीतना ही है किसी को, तो खुद को जीतना है, ऐसा हमारी सभ्यता तो कहती है। बट हम लोग अलेक्जेंडर को द ग्रेट बोलते हैं और शिवाजी महाराज और अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य को भूल जाते हैं। तो भाई ये जो चीज है, ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं आज से 2350 साल पुरानी। इससे भी 50 साल पीछे जाओ तो 2400 साल पहले मुझे पाइथागोरस मिलेंगे जो ज्योमेट्री के किताब में होते हैं। उससे भी 200 साल पीछे जाओ, 2600 साल पीछे जाओ तो गौतम बुद्ध जी मिलेंगे। आई विल मीट महावीर जैन। तो 2600 साल में बहुत सारे धर्म चपेटे में आ गए। अभी इसके पीछे 1000-1500 साल जाओ तो जिस सभ्यता के नाम से इसको भारत देश बोला जाता है, उस सभ्यता के कुछ वैदिक धार्मिक ग्रंथ हमको मिलेंगे जिनको वेदास बोलते हैं। और इस वेदास का एक अहम हिस्सा है वेदांग ज्योतिष, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल सटीक कैलकुलेशन है। बट नाम पे मत जाइए। वेदों का अंग तो वेदांग, ज्योतिष मतलब राशि भविष्य नहीं। ज्योतिष मतलब आसमान के ग्रह तारे नाम की जो ज्योतियां है उनका ज्ञान, जिसके ज्ञान से आप समय का मापन कर सकते हो और उसी तरीके से खेती बाड़ी कब करनी है, फेस्टिवल कब सेलिब्रेट करने हैं, बाढ़ कब आने वाली है, इक्लिप्स कब होने वाला है, इसका कैलकुलेशन आज से 4000 साल पहले अगर हमारे पूर्वज करते थे तो हमें उनके बारे में गर्व और फक्र नहीं करना है। हमें उनके तरीके से मेहनती और लायक और सोच वाला इंसान बनना है। बेतुकी चीजों का गर्व और फक्र और अभिमान करने जब लोग लगते हैं तो सिर्फ झंडा और तस्वीरें लेके जुलूस निकलते हैं, देश की सही मायने में तरक्की नहीं होती। तो आप देश की तरक्की में हाथ बटाना चाहते हो तो भाई तस्वीर घर पे रखो, दुकान में ही रहने दो, दिमाग में विचार रखो, और वो विचार इंसानियत के लिए, समाज के लिए प्रेरक और उपयोगी होना चाहिए। तो भाई सिर्फ हम गए सिर्फ आज से 4000 साल, और 1000 मिला दो तो 5000 साल, और 5000 साल पहले हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, हड़प्पा की संस्कृति मिलती है, जहां के लोगों ने भी घरों के बगल में टॉयलेट बाथरूम किया था, इतने सिविलाइज थे। 5000 साल पीछे गया हूं, मैंने प्रॉमिस किया था 14 अरब साल पीछे जाऊंगा। इसी स्पीड से जाऊंगा तो 1 घंटे में तो लेक्चर होने से रहा, तो स्पीड बढ़ा। 5000 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं 50,000 साल पीछे गया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 लाख साल। अभी आपको चैट बॉक्स में लिखना है कि 5-5.5 लाख साल पहले हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी एस्ट्रोनॉमिकल घटना हुई थी कि जिसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट इंडिया में आते हैं। मैं हिंट देता हूँ, महाराष्ट्र में आते हैं, मैं हिंट देता हूँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। नाउ यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट लोनार लेक। लोनार लेक 5-5.5 लाख साल पहले मीटियोरेटिक इम्पैक्ट से या फिर शायद किसी वोल्केनिक इरप्शन से हुआ, तो ज्यादा सटीकता लगती है मीटियोरेटिक इम्पैक्ट से। एनीवेज, मैं वहां 2-3 बार बच्चों को लेके गया हूँ, मेरे घर से तकरीबन 450 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है। तो आप गए क्या कभी? ऑब्वियसली कोई भी नहीं गया। क्यों नहीं गए? क्योंकि लोगों को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार जाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ बाप को, समाज को, पॉलिटिशियंस को, टीचर्स को, किसी को भी पता नहीं है कि इस विज्ञान युग के तीर्थ क्षेत्र जो है, पिलग्रिमेज प्लेसेस जो है, वो साइंटिफिक है। आपको साइंस सेंटर जाना चाहिए, आपको आर्कियोलॉजिकल साइट्स जाना चाहिए,
आपको फोर्ट्स देखने चाहिए, आपको फ्रीडम फाइटर्स का चरित्र पढ़ना चाहिए, बट यू आर पैनिक बिहाइंड शाहरुख खान एंड हीरो हीरोइन। वो क्या करते हैं, वो टीवी पे दिन रात आता है, जिस चीज के बारे में हम सोच नहीं सकते वो दिन रात करते हैं, और हम उनको अपने आदर्श लेके चलते हैं, क्योंकि शायद हमारे ऊपर जो संस्कार है और हमें जो आगे जाके देश के लिए करना है उसमें कहीं तालमेल नहीं। एनीवेज, अगर मैं गया था 5-5.5 लाख साल पहले और मैंने लोनार लेक को बनते हुए देखने की इच्छा जाहिर की, तो इससे भी पुरानी दुनिया है, तो 5.5 लाख साल से पुराना कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट या जीव मुझे बता दो, तो शायद आप बोलेंगे कि हाँ मैं कुछ जानता हूं, एंड आई नो द डायनासोर। डायनासोर की फिल्म देखने के बाद भी आज मैं बच्चों को पूछूं कि डायनासोर कब पृथ्वी पे आए और कब चले गए, तो लोग बोलेंगे सर ना ही हम मैयत पे गए थे ना ही बर्थडे पे। तो सबके बर्थडे पे जाना नहीं होता है, सबके इस पे भी नहीं जाना होता है, क्योंकि जो आया है वो कभी ना कभी तो जाएगा। वक्त जरूरी है, तो वक्त को इफिशिएंटली यूज करना सीखिए। नेट पे डालोगे तो पता चलेगा कि 65 मिलियन ईयर्स बिफोर डायनासोर गॉट एक्सटिंक्ट, और तकरीबन 20 करोड़ ईयर्स बिफोर दे गॉट इनटू द एग्जिस्टेंस। 65 मिलियन मतलब 6.5 करोड़, 20 करोड़ से 6.5 करोड़ गए तो बचे 13.5 करोड़, मतलब 1350 लाख साल पृथ्वी के ऊपर डायनासोर्स की पीढ़ियां राज कर रही थी। 1350 लाख साल अपना अस्तित्व बनाने के लिए डायनासोर्स ने कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारा, कितने चर्च, कितने बुद्ध विहार, कितने जैन टेम्पल का निर्माण किया, या आपको खुद को पूछना चाहिए, क्योंकि इंसान ने तो 40-45 लाख साल की नंगी पुंगी अवस्था से अब तक तरक्की करते करते इतने धर्मस्थल बना दिए कि शायद इंसान जरूरी है कि धर्म जरूरी है, पृथ्वी जरूरी है, इंसानियत जरूरी है, नेचर जरूरी है, कुछ कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता बहुत सारे लोगों का जिनके पास वैज्ञानिक सोच नहीं। तो अगर ये बात को हम यही छोड़े और बोले कि ये डायनासोर पृथ्वी पे आए, तो पृथ्वी कितने साल पहले आई, तो होशियार बच्चे तो जानते हैं कि 20 करोड़ साल पहले डायनासोर पृथ्वी पे आए, तो पृथ्वी सूरज के माध्यम से निर्माण हुई 460 करोड़ साल पहले, 4.6 बिलियन। और ये जो अपनी सोलर सिस्टम है वो जहां से निकली, वो ब्रह्मांड आपके सामने वाले चित्र के हिसाब से 13.8 बिलियन ईयर्स, मतलब 1380 या 1400 करोड़ साल पहले पैदा हुआ। ये चित्र में कहीं आपको भूत, डाकिन, कोई मुंजा या कोई ऐसे घोस्ट, बीच ऐसे कुछ दिख रहा है? नथिंग। तो ये सारी चीजें कहां से आई? हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत ही बड़े रिफॉर्मर थे जिनका नाम था प्रबोधनकार ठाकरे। ये बाला साहब ठाकरे जी के फादर थे, और वो दुनिया को बता के गए कि भाई ये जो देव है, दानव है, इन सबका निर्माण इंसानी दिमाग से हुआ। तो अगर आप इस बात को मानते हो, नहीं मानते हो, हमको आगे जाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि बच्चे कम नहीं हो रहे, मतलब बोर नहीं हो रहे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने यूनिवर्स के निर्माण की छोटी सी झलक देखी, अभी सोलर सिस्टम की देखेंगे। मैं आपको पूछूंगा कि सोलर सिस्टम क्या है, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का बड़ा सा एक समुद्र था, उसमें से कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फॉल के कारण शुरुआती तौर पे प्रोटोस्टार बना, और फिर से ये सेकेंडरी टर्शरी स्टेज का एक मासिव तारा बना, और उसने जब 1% जैसा कचरा फेंका तो उससे ये प्लेनेट नाम के गोले बने, और हम थोड़े बहुत हैबिटेबल जोन में होने के कारण पृथ्वी के ऊपर जीव का निर्माण हुआ। वेरी गुड। पर अगर मैं बोलूं कि ये जो सूरज है, ये जो पृथ्वी है, ये जो चंद्रमा है, ये जो शनि है, शुक्र है, मंगल है, गुरु है, क्या ये आपके जीवन के ऊपर इफेक्ट करते हैं? तो यंग बच्चों की बोलती बंद, और बड़े चढ़ा बढ़ा के बोलेंगे हाँ हम तो ताबीज पहनते हैं, हम तो अंगूठी पहनते हैं, ये अंगूठी पहनने के कारण, ये ताबीज पहनने के कारण मेरे घर पे शांति आ गई, ये फायदा हुआ, बच्चा ग्रेजुएट हो गया, बेटी अमेरिका चली गई। एंड आई डोंट बिलीव सच थिंग्स, एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, यहाँ जो चित्र दिखाया है ये सिर्फ नेचर का खेल है। इसमें कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है, नहीं कोई ऊपर वाला है, कोई साइड वाला है, नहीं कोई बाबा बुआ है। इसमें कुछ है तो ऊर्जा का खेल है। और इस ऊर्जा को, खेल को समझने के लिए जब आप साइंस ग्रेजुएशन करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, इंडस्ट्री में काम करते हो, तो सही मायने में आप तनख्वाह तो पा रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप मानवता की सेवा कर रहे हो, क्योंकि आप उस टीम का हिस्सा है जो सकारात्मक तरीके से दुनिया को आगे लेके जाने की कोशिश करे। अभी देखिए आप, यहाँ मैंने जो चित्र बताया, जिसके बारे में आपने ही मुझे विवरण दिया, सोचिए कि 1% से भी कम वजन के चीजों से प्लेनेटरी बॉडीज बनी है, और 99% मास अभी भी सूरज में है, और वो दिन रात ऊर्जा का निर्माण कर रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की रिएक्शन से। मैं न्यूक्लियर फिशन पे काम करने वाला एक वैज्ञानिक या इंजीनियर हूं, जिस
को न्यूक्लियर साइंटिस्ट बोला जाता है, क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। तनख्वाह इतनी अच्छी मिलती है कि मैं अपना खुद का सब कुछ करके अपने पैसे से ही पिछले 25 साल से सोशल वर्क कर रहा हूं, और अभी भी मुझे कभी पैसे की कमी नहीं। तो इतना अच्छा गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, तो 2-4 लेक्चर, 2-3 हजार लेक्चर मैं अगर अपने पैसे से दूं, तो उसमें गलत क्या है? मेरा शौक है, और शौक बड़ी चीज है। सिर्फ वो गुटखा खाने वाला शौक नहीं होना चाहिए, शौक होना चाहिए कि दुनिया में ज्ञान फैलाऊं। ओके, तो ये ज्ञान फैलाने के चक्कर में मैं आपकी भावनाओं को अगर चोट पहुंचा रहा हूं, तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, इसको आप समझिए। ये जो सूरज निर्माण हुआ, इसने जो थोड़ा कचरा फेंका, उससे मिट्टी, हवा, वायु के गोले निर्माण हुए, ये आपके जिंदगी में कोई रोल प्ले करते हैं, ऐसा अगर आपको लगता है, तो आपको इस गलतफहमी से बाहर लाने के लिए मैं एक महान व्यक्ति का शब्दांकन, यानी उन्होंने जो बोला वो आपको बताना चाहूंगा, और वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी यूथ आइकॉन इंडिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए और पूरे इंसानियत के लिए है, बिकॉज ही 40 साल की छोटी आयु में उन्होंने जो दुनिया को धर्म का सार बताया, विज्ञान का सार बताया, इंसानी सभ्यता के सोच को नया आयाम दिया, वो सचमुच काबिले तारीफ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, ह्यूमन बीइंग्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ देयर ओन डेस्टिनी। इंसान उसके क्या भाग्य का खुद विधाता है। ये भाग्य, विधाता, ये सब चीजें कुछ लोगों को सुनने में बड़ा मजा आता है। चौथी फेल बाबा बुआ को ये सब शब्दों के कारण लोग इतना चाव से सुनते हैं कि समझ में नहीं आता है कि दुनिया ऊर्जा से चल रही कि बाबाओं की दुआ से। तो ये जो है, ये जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि भाई इंसान अपने हाथों से अपनी और दुनिया की तकदीर संवारता है, तो उदाहरण लेते हैं। आज से 80-90 साल पहले कहीं रामेश्वरम के आसपास किसी फैमिली के फिनेंशियल कंडीशन अच्छे न होने के कारण बच्चे उनके मेहनत तो कर रहे थे, बट एक थोड़ा ज्यादा अलग से मेहनती बच्चा था, जो न्यूज़पेपर भी बेचता था, पढ़ता भी था, पढ़ते पढ़ते इंजीनियर बन गया। बनने के बाद फाइटर प्लेन का पायलट बनने गया, बट कुछ कारणवश 8 वैकेंसी थी, शायद 9वां नंबर आ गया, तो बंदूक उठा के टेररिस्ट नहीं बने, ना ही सुसाइड करने गए, ना ही माँ बाप को गाली दी, और मेहनत की। DRDO नाम की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके टांगे फैला के सो नहीं गए, ना ही रिश्वत दी, मेहनत की। आगे जाके चीफ साइंटिफिक एडवाइजर बने, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए, प्रेसिडेंट बने। पर सादगी जो थी वैसे ही रही। 2 बैग लेके राष्ट्रपति भवन में गए और 2 बैग के साथ ही बाहर आए, ना ही कुछ एक्स्ट्रा जमीन या बंगला अपने नाम पे कराया। ऐसे महान व्यक्ति को बोलते हैं सही इंसान, और ऐसे सही इंसान का नाम डॉक्टर APJ है, ये बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, और वो सबके लिए आदर्श है। तो हिंदुस्तान के सबके लिए अगर APJ कलाम एक आदर्श है, तो जब APJ का नाम लेते हैं तो क्या हम उनके धर्म के बारे में, उनके जाति के बारे में, उनके भाषा के बारे में, उनके रंग रूप के बारे में सोचते नहीं? हेलो सर। माइक बंद करो, हेलो माइक बंद करो। हेलो सर, क्या पढ़ा रहे? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है हमको। तो छोड़ दो। ओके, तो हम बोल रहे थे कि ये जो आप सोचते हो, समझते हो, उसके पीछे आप उस आदमी का इतिहास देखते हो। कलाम साहब ने कभी भी अपने धार्मिक होने का पूरे दुनिया में रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। उनके लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। तो ऐसे जो व्यक्ति है, इन लोगों को अगर आदर्श लेके चलना है, तो उनको, उनके जिंदगी को हमको उदाहरण लेके चलना होगा। कलाम साहब को जब आप देख रहे हैं, तो ना उन्होंने कभी अंगूठी पहनी, ना कोई ताबीज पहना, ना कभी वो टोपी या दाढ़ी बढ़ा के घूमे। उनके लिए जरूरी था भारत का सेल्फ रिलायंट होना। वो डिफेंस फील्ड में तो डिफेंस पे काम कर रहे थे, हम न्यूक्लियर सेक्टर में तो न्यूक्लियर के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी इंजीनियरिंग फर्म में हो तो इंजीनियरिंग फर्म के लिए काम कीजिए। हर एक का रोल जरूरी है। फिर आप घर पे काम करते हो, बाहर काम करते हो, मिलिट्री में काम करते हो, जो भी। तो ये भाई जो सोलार सिस्टम है, ये सोलार सिस्टम भी हमें ये उदाहरण देती है कि दुनिया में ऊर्जा के स्रोत का कोई लिमिट नहीं। ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारे घर पे LPG सिलेंडर है, 14-15 किलो का LPG सिलेंडर 3 महीने का, 2 महीने का तो जरूर ही पूरे फैमिली का खाना बना देता है। सूरज के ऊपर 14-15 किलो हाइड्रोजन फ्यूज नहीं होता 2-3 महीने। सूरज के ऊपर 1 सेकंड में 600 बिलियन किलोग्राम हाइड्रोजन फ्यूज होता है 1 सेकंड में, और उससे जो बाकी चीजों के साथ ऊर्जा का निर्माण होता है, उसका 1 अरबवाही हिस्सा पृथ्वी तक पहुंच पाता है। फिर भी औसतम 1500 वैट पर स्क्वायर मीटर
ये उसकी ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। सोचो आपने मेहनत करके अगर इस तरीके से कुछ आविष्कार किया कि उससे आप सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाओ विदाउट मच पोल्यूशन, तो आप दुनिया का भाग्य बदलने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, होमी जहांगीर भाभा या सीवी रमन या जो भी एक लायक व्यक्ति हो वो कहलाओ। ये करने के लिए मेहनत चाहिए, संस्कार चाहिए और कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हमने सोलर सिस्टम देखा तो कुछ नमूने जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक होते हैं उनको अभी भी इस चीज से प्रॉब्लम है कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मिट्टी जैसा ऊर्जा गर्म सा गोला थी पृथ्वी, उसके ऊपर सडनली ये सुंदर से मनुष्य प्राणी जीव कहाँ से आए। फिर उसमें ये जो धर्म गुरु है वो झूठ फैलाते रहते हैं कि इसने लाया, उसने लाया, इधर से लाया, उधर से लाया। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि बंदर जैसे प्रजाति से उत्क्रांत होते हुए इंसान का जन्म हुआ, तो आप बोलोगे सर नहीं, क्या बात है, किताब में यही लिखा है। तो अगर यही लिखा है तो इसके एग्जैक्ट उल्टा बोलने वालों की दुकान चलती कैसे है? और जब दुकान वो चलती है और वहां जाके बहुत सारी गलत चीजें सामने आती है, तो आप लोग एग्जैक्टली उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? तो यहाँ बताने का तात्पर्य ये है कि अगर डार्विन ने उत्क्रांति का थ्योरी बताया, इवोल्यूशन का थ्योरी बताया, तो उन्होंने 5-6 साल पूरी दुनिया का भ्रमण किया। आज भी उसको एग्जैक्टली रिप्लेस कर सके ऐसी थ्योरी अवेलेबल नहीं। तो आज भी इस थ्योरी के सहारे हमको चलना है। तो बंदर जैसे प्रजाति से इंसान उत्क्रांत हुआ, बंदर किसी सरीसृप जैसे जीव से उत्क्रांत हुए, करते करते पीछे जाएंगे तो सवाल ये आता है कि एग्जैक्टली कैसे जीवों का निर्माण हुआ इस बेजान पृथ्वी पे। द ऑब्वियस आंसर इज फ्रॉम वाटर। आप पूछोगे पानी कहाँ से आया, तो मैं बोलूंगा मीटियोर, कॉमेट्स, इसके ऊपर भारी मात्रा में बर्फ रहता है, तो शायद इसी के माध्यम से बर्फ से पानी बना होगा। बट फिर भी जब सवाल तो वही रह गया, पानी हो, बर्फ हो, तो है क्या? H2O। तो इसमें से H अगर बिग बैंग के माध्यम से बना तो O कहाँ से बना? गोल्ड कहाँ से बना? प्लेटिनम कहाँ से बना? यूरेनियम कहाँ से बना? लिथियम कहाँ से बना? तो इस सवाल का जवाब आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, तारा, स्टार्स आर द फ्यूजन फैक्ट्रीज, और इस फ्यूजन फैक्ट्री के सेंटर में कहीं हर एलिमेंट फोर्ज होता रहता है। दुनिया के जो 118 एलिमेंट मेंडलीव के टेबल में है, वो सारे एलिमेंट आपको तारों से ही निर्माण होते हुए मिलते हैं, फिर फेंके जाते हैं, फिर यहाँ वहां पाए जाते हैं, और वहां से ही पानी की शुरुआत हुई, पानी पृथ्वी पर आया, और वहां पे हजारों लाखों साल के बाद एमिनो एसिड्स बने, और एमिनो एसिड से कुछ लाख साल बाद इस तरीके से जीवों का निर्माण हुआ, और आगे जाके ये जीव इतने बड़े हुए, और इतने बड़े जीवों से भी इस पृथ्वी पे अपना अस्तित्व परमानेंट नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि मंदिर नहीं जाते थे, मस्जिद नहीं जाते थे, चर्च नहीं जाते थे? नहीं, क्योंकि नेचर के सामने हम अभी भी छोटे हैं, और शारीरिक तौर पे बड़े होने के बाद भी बौद्धिक तौर पे छोटे होने के कारण वो जीव बचे नहीं। क्या हुआ? एक छोटा सा मीटियोरेटिक इम्पैक्ट कहीं लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कहीं हुआ, और ये जीव एक्सटिंक्ट हो गए, ऐसा कहा जाता है। इसी तरीके की किसी जीव से प्रक्रिया से जब ये जीव एक्सटिंक्ट हो गए, तो आगे जाके उत्क्रांति फिर से चल पड़ी कुछ हजार लाख साल बाद, तब ये जीव उत्क्रांत हो रहा। ये जीव के पास डायनासोर की तरह बड़ा शरीर नहीं, ना ही शेर की तरह पंजे थे, ना ही सांप की तरह जहर था, ना ही पंछी की तरह हवा में उड़ पाता था। तो खुद को बचाने के लिए जीव ने क्या किया? अपने शरीर के साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। थोड़ा मोगली पिक्चर देख लीजिए आप। तो जैसे उसने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया, धीरे धीरे उसको समझ में आ गया, एक से भले दो, तो ग्रुप में रहने लगा। धीरे, माइक बंद कर दीजिए, हेलो। माइक बंद कर दो। तो धीरे धीरे ये जीवों ने ग्रुप बनाना चालू कर लिया, खेती बाड़ी करना चालू कर लिया, जीवों को पालतू यानी टेम करना चालू कर दिया। करते 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 200 साल पहले 5000 साल पहले घर बनाए, 200 साल पहले मशीनें बनाई, 60 साल पहले कंप्यूटर बनाया, 30 साल पहले मोबाइल बनाया, और आज उसी मोबाइल के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट इसी मोबाइल के माध्यम से ये इंसान नाम का जो जीव है वो पूरी दुनिया पे राज करता है। तो भाई ये जीव इतना प्रगल्भ, उत्क्रांत और इतना सेफ सिक्योर लाइफ किसकी कृपा से जी रहा है? तो आप यहाँ वहां देखोगे तो मैं लेट मी करेक्ट यू, इंसान आज इस मकाम पे पहुंचा है तो इसका कारण है
इंसान की खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी, मेहनत करने की इच्छा और क्षमता, और सबसे जरूरी चीज है क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी, मेहनत और पेशेंस हो तो कोई भी रामेश्वरम का बच्चा हो या गिरिडीह का बच्चा हो, झारखंड का बच्चा हो, वो डॉक्टर कलाम भी बन सकता है, होमी जहांगीर बाबा भी बन सकता है, मेरी क्यूरी पेरी क्यूरी भी बन सकता है, कल्पना चावला भी बन सकता है। तो मेहनत करना सबसे जरूरी है। इसी उसी पे अंधविश्वास रख के खुद की तरक्की के बीच में बाधा न डालिए। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, इसमें आपको मैं कुछ माउस से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ऑरेंज स्ट्रिप आपको दिख रहा है, देखिए छोटा सा, ये ऑरेंज स्ट्रिप ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस है। पाई डायग्राम में पूरा सर्कल अगर 4.5 अरब साल दिखा रहा है, तो छोटा सा स्ट्रिप जो है वो आपको दिखा रहा है इंसानी सभ्यता की शुरुआत, बंदर जैसे, एप जैसे जीव से, जो पीरियड है 25 से 50 लाख साल। तो 25 से 50 लाख साल में हम यहाँ तक पहुंच गए, पूरे दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरप्लैनेटरी मिशन तो छोड़ ही रहे हैं, बट शायद इंटरस्टेलर मिशन के लिए भी कोशिश हो रही है। और ये सब जब हो रहा है तो हम अंधविश्वासों या दूसरों पे निर्भर रह के हमारी झोली भरने के लिए स्वार्थ प्रेरित भावना से कोई कर्म कांड में उलझे रहे, ये गलत बात है। भारत जैसे डाइवर्सिटी से पूरी तरह लैस देश में ये गलत बात। यहाँ हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे भाषा बदलती है, जात धर्म का तो कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसे में हमको डाइवर्सिफाइड कंडीशन में यूनिफाइड रहना है, तो हमको हमारा धर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा और हमको इंसानियत के धर्म का पालन करना पड़ेगा। हमको अपनी तरक्की के साथ देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी, संप्रभुता के लिए सचमुच सही मायने में सोचना हो। अगर आप ये सोचने के लिए सक्षम बनना चाहते हो तो एक उदाहरण देता हूं कि कितनी बड़ी दुनिया में हम कितने छोटे प्लेनेट पे कितने से रहे। आपको ये मालूम होगा, मुझे मालूम है, बट फिर भी मैं जो बताऊंगा उससे आपको थोड़ा ज्यादा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन हिंदी में आएगा, भले सबटाइटल ना हो। यहाँ पे जो पहला प्लेनेट दिखाया वो मर्क्यूरी है, डायमीटर 4880 किलोमीटर। दूसरा शुक्र 12,000, पृथ्वी 12,500, मंगल 6,500। यहाँ पे यूरेनस नेपच्यून है, उसमें 20-40 पृथ्वियां सहज तरीके से रह जाएंगी। शनि में 750 पृथ्वियां रह सकती है और गुरु में 1300 पृथ्वियां अकोमोडेट हो सकती है। सोचो, टेम्पररी आपने न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हुए इन सबके साइज के हिसाब से अंगूठी पहनना या तावीज पहनना चालू कर दिया, तो प्रोबेबली आपके हाथ पांव की उंगलियां भर जाएंगी, मुझे तो लगता है झड़ भी जाएंगी। अभी ये सूरज जो इनका पिता है, सेलेस्टियल फादर ऑफ आवर सिस्टम, अपनी जो तारका समूह, अपना जो सोलर सिस्टम है, उसका सब कुछ यही तो है। नीचे वालों की अंगूठी तावीज पहनने से हाथ पांव की उंगलियां भर गई थी और झड़ने वाली थी, तो सूरज का तो टायर पहनना पड़ेगा गले में, जो तो आप करोगे नहीं क्योंकि अनकंफर्टेबल होगा। लोग कंफर्ट जोन में ही सारे अंधविश्वास रखते हैं। तो ये जो कंफर्ट जोन वाला फंडामेंटल है, इससे अगर हम बाहर आए और मैं आपको एक सवाल पूछूं कि दिन में दिखने वाला सूरज और रात में दिखने वाले तारे एक जैसे ही है, तो ये रात में कितने तारे एट ए टाइम या पूरी रात में हम अपने आंखों से देख सकते हैं? आप दो लोग बोलोगे इनफाइनाइट, अगणित, अनकाउंटेबल, तो गलत जवाब है, क्योंकि अच्छे से स्काई कंडीशन में आपको सिर्फ 5,500-6,000 तारे ही दिख सकते हैं, और वो सारे तारे सूरज से कई गुना बड़े हैं। तो उदाहरण ही ले लेते हैं, गुरु दिखाया जिसमें 1300 पृथ्वी अकोमोडेट हो रही थी, फिर सूरज दिखाया जिसमें 10 लाख पृथ्वी अकोमोडेट हो रही थी, व्याध दिखाया जिसमें 10-20 सूरज चले जाएंगे, पोल्युक्स में 10-20 व्याध चले जाएंगे, और स्वाति नाम के तारे में एक 10-20-50 पोल्युक्स चले जाएंगे। आगे जाएंगे तो देखेंगे कि सूरज दिख ही नहीं रहा है, और मैं बोल रहा हूं कि बेटलग्यूस काक्षी यानी जेस्टा और एंटारस, नहीं, जेस्टा और काक्षी या फिर बेटलग्यूस और एंटारस, ये जो तारे हैं, ये जो एवरेज तारे हैं, इनमें लाखों करोड़ों सूरज रह सकते हैं। इनकी अंगूठी या तावीज पहनना न्यूटन के लॉ के हिसाब से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं दिखाया आपको 10-12 तारे, जबकि मैं बोल रहा था रात के आसमान में 5-6 हजार तारे दिख सकते हैं। बट एक्चुअल बॉम्ब ये है कि जिस मिल्की वे की प्रिंसिपल सर ने बात की, वो यहाँ अगर नीले सर्कल के अंदर दिखाया है, तो उसमें 5-6 तारे नहीं है, तो 100-200 बिलियन तारे। और ये 200 अरब तारे अगर इस गांव में रहते हैं, और मेरे मन को इच्छा की कि मैं इस सर्कल को डायमेट्रिकली जर्नी के तौर पे ले लूं,
ताकि मैं इस ओर से उस छोर पहुंच जाऊं। तो आप बोलोगे सर चलते मत जाना, मोटरसाइकिल तो ले ही लीजिए। तो मोटरसाइकिल से भी जाऊंगा तो 40-50 किलोमीटर 1 घंटे में जाऊंगा, कार से जाऊंगा तो 60-70, ट्रेन से जाऊंगा तो 100-125, हवाई जहाज से जाऊंगा तो 1000-1200, और स्पेस शटल से जाऊंगा तो 60-65 हजार किलोमीटर 1 घंटे में, मतलब 1 सेकंड में 16 से 17 किलोमीटर। तो 16 से 17 किलोमीटर अगर हम 1 घंटे में जा रहे हैं, सॉरी 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो पूरे पृथ्वी का चक्कर मारने के लिए हमको 1 घंटा काफी। और आपको मालूम है कि ये जो स्पेस शटल मैनमेड चीज है, इससे भी ज्यादा स्पीड में जाने वाली एक नेचुरल चीज है जिसका नाम है लाइट। लाइट का स्पीड 16-17 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं है, लाइट का स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इस रफ्तार से जब लाइट चलती है तो पूरे पृथ्वी का चक्कर मारने के लिए 1 सेकंड में 7.5 चक्कर मार सकती है। इस स्पीड से जाने वाले लाइट को अगर मैं इस मिल्की वे गैलेक्सी के एक एंड में रखूं और दूसरे एंड जाना है तो कितना समय लगेगा पूछा मैंने लोगों को। लोगों ने जवाब दिया 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 घंटा, 5 दिन, 5 साल। एक्चुअल जवाब है 1 लाख साल। इस एंड से उस एंड प्रकाश की गति से जाने के लिए 1 लाख साल लगते हैं। बट है ये डिस्टेंस का यूनिट, तो डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 365 into 24 into 60 into 60। जवाब आएगा 1 के ऊपर या 10 के ऊपर तकरीबन 18 जीरो। ओके, तो ये इतना किलोमीटर वाला गड़बड़ी हो सकती है मेरी जीरो में, मैं बहुत दिन बाद लेक्चर दे रहा हूं, बट तकरीबन आप पकड़ लिए कि 1 लाख लाइट ईयर्स तकरीबन काफी बड़ा होगा। तो ये अगर मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर है और उसमें जो येलो स्पॉट दिखाया वो सूरज नहीं है, सूरज का लोकेशन है, मतलब हम सेंटर में लोकेटेड नहीं है, तो इसके इर्द गिर्द कोई गैलेक्सी है क्या? ये गैलेक्सी, इसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में 200 बिलियन नहीं शायद 400 बिलियन तारे हैं। इस एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए 1 लाख साल नहीं लगते प्रकाश को, 2 लाख साल लगते हैं। तो आप बोलोगे 2 ही गैलेक्सी है क्या? मैं बोलूंगा नहीं, ये चित्र देख लीजिए, यहाँ दिखाया हुआ हर बिंदु एक गैलेक्सी है। आप बोलेंगे हमारी वाली गैलेक्सी कौन सी है? पकड़ लो कोई भी एक गैलेक्सी जिसके बगल में कोई दूसरी गैलेक्सी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि माउस की तरफ ध्यान दीजिए और मैं यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु टच कर रहा हूं, उसको मैं मिल्की वे गैलेक्सी ले रहा हूं। उसके एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए 1 लाख प्रकाश वर्ष। दूसरा बिंदु ये ले रहा हूं जिसके एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए प्रकाश को 1,80,000 साल लगते हैं, क्योंकि वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी मान लीजिए। और ये दो गैलेक्सी के बीच की दूरी जो छोटी सी नन्ही सी लग रही है वो है 22 लाख प्रकाश वर्ष। तो 22 से 25 लाख साल प्रकाश को ये दूरी तय करने में लगते हैं। तो आप बोलेगे ये पूरा चित्र क्या है? ये पूरा चित्र यूं है कि सपोज आपने एक आंख बंद कर ली हाथ से, दूसरे हाथ के 2 उंगलियों में 5 रुपए का कॉइन पकड़ लिया और जो खुली आंखें उससे उस कॉइन को देख रहे हो ताकि उसके पीछे का आसमान कुछ छुप जाए। तो उस कॉइन के पीछे जो आसमान का छोटा सा हिस्सा छुप गया, उसका अगर आप हबल स्पेस टेलीस्कोप से फोटो लोगे तो वो जो चित्र के पीछे की तरफ जो बहुत सारी चीजें छुपी होंगी, उस चीजों का ये एक्चुअल पिक्टोरियल व्यू है। यहाँ पे 3000 गैलेक्सी दिखाई, बट मेन सवाल क्या है कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो चलो मान लेते हैं कि ये 3000 गैलेक्सी 5 रुपए के कॉइन के पीछे जो आसमान का हिस्सा था वहां थी। तो सवाल आता है कि पूरे आसमान में कितनी गैलेक्सी? तकरीबन 100-200 बिलियन। तो आप बोलोगे इतना बड़ा है ब्रह्मांड? तो मैं बोलूंगा नहीं, अभी भी हिंदी पिक्चर में रजनीकांत का एंट्री बाकी है, क्योंकि क्लाइमैक्स ये है कि ये जो 200 बिलियन गैलेक्सी है, ये 200 बिलियन गैलेक्सी अपने ब्रह्मांड का 5% विजिबल मैटर है, 95% इज अ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में अगर हम रहते हैं और एक छोटे से प्लेनेट पे रहने वाले जीवों ने उसके बारे में जाना, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सोच है, मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, क्यूरियोसिटी है, वैज्ञानिक सोच है। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान में जो वैज्ञानिक सोच एक्सपेक्टेड थी अटल जी को, वो अटल टिंकरिंग लैब में जाने वाले बच्चों को होनी चाहिए। तो सिर्फ ATL बनाने से नहीं चलेगा स्कूल को, बच्चों के अंदर वो वैज्ञानिक सोच आनी ही चाहिए। जब तक समाज का 100% हिस्सा सोच में विश्वास नहीं रखता और कायदा कानून में विश्वास नहीं रखता, शांति अमन में विश्वास नहीं रखता, आप चैन से नहीं जी पाओगे, क्योंकि आप समाज का हिस्सा हो।
तो अगर देश को तरक्की पे लाना है, आज जो हमारी रिसर्च के मामले में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग के मामले में दुनिया में हालात है, उसका एक स्लाइड मैंने यहाँ रखा है। आपको समझ में आए तो बेहतर, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये लोनार लेक जिसका मैंने जिक्र किया था, यहाँ कुछ ओरायन कॉन्स्टिलेशन है, ये ओरायन नेब्यूला है, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी का लोकेशन है, और ये पोल स्टार। पेरेंट्स आर बीइंग फर्स्ट टीचर्स, children being imitators. Parents need to prepare children as early as possible so that it is impossible to prepare adult नाम के फेनोमेना में न जाना पड़े। यहाँ मैंने साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बहुत कुछ लिखा, बट वक्त की नजाकत देखते हुए आपको यहाँ जो ग्रीन में 9967584554 नाम का नंबर दिख रहा है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी लेक्चर ठीक नहीं लग रहा था, बोल रहे थे, वो बच्चे यहाँ पे फीडबैक भेज सकते। बेवजह लेक्चर के बीच में बदतमीजी करके खुद का और माँ बाप का नाम खराब न करते। अभी यहाँ पे आप मुझे लेक्चर के बारे में इनपुट दे सकते हो, नहीं तो मैं आपके तिवारी सर को एक लिंक भेज रहा हूँ जहां पे आपको फीडबैक देना ही है। 100 बच्चे यहाँ है, यूट्यूब पे 400-500 बच्चे होंगे, तो सबको मिलके मेरे इस प्रोजेक्ट्स के बारे में, मेरे लेक्चर के बारे में, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, उसके बारे में आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो उसका विवरण मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। बट गलती से आपको एस्ट्रोनॉमी नाम के फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप मेरे से संपर्क में रहिए। अगर आपको आगे जाके यूपीएससी वगैरह जैसी एग्जाम देनी है और आपको मार्गदर्शन चाहिए तो मेरे से जुड़े रहिए। सब कुछ मोस्टली फ्री रहता है, बट कभी कभी जो टीचर्स है उनके लिए हमको तकलीफ करनी पड़े। जैसे ये मेरा लेक्चर फ्री था क्योंकि मैं खुद इन्वॉल्व और मेरा शौक है, बट जब दूसरों की मदद से हम कुछ करते हैं तो नॉर्मली सब कुछ आप सोच रहे वैसा होना मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं। आपने बहुत सारे कुछ सवाल पूछे, उनमें थोड़ा बहुत जाते हैं, और बाकी सवाल आप मुझे व्हाट्सएप से भेज दीजिए। अभी यहाँ किसी ने पूछा व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट इज स्टार। स्टार इज फ्यूजन फैक्ट्री जहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से बेरिलियम बनता रहता है। और आपको यही जानना है तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप गूगल पे डालिए। आप भूलिए मत, गूगल ज्ञान का महासागर है। इंटरनेट पे बहुत सी अच्छी चीजें में भी होगी कि जिंदगी के पहले 20-25 साल सारे आपके जो वासनाएं, कामनाएं, षड्रिपु है, उनमें आपको कंट्रोल रखना है और खुद को काबिल बनाने पे ध्यान देना। तो हर चीज से जो आपको गलत राह पे लेके जाए उससे दूर रहना, मतलब ब्रह्मचारी। ये समझ में आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटरनेट जैसा महान ज्ञान का सागर होते हुए आपको ट्यूशन जाने की सचमुच जरूरत नहीं। अच्छे स्कूल में जाने वाले बच्चों को तो सचमुच सोचना है, स्कूल वाले इतनी मेहनत करते, माँ बाप स्कूल में इतनी फीस देते, तो फिर और पैसा क्यों जाया करें। सोचिए इस पे एक बार। आपको स्टार का जवाब देना था, मैंने आपको सुपरस्टार कैसे बनना है वो जवाब दे दिया। एनीवे, व्हाई द मून इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ एट अ रेट ऑफ 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर। तो भाई रैयान क्या है, मोहम्मद अरीज, अच्छी बात है आप नॉलेज रखते हो। अच्छा लगा कि किसी ने फैक्ट पूछी। ये सब ग्रेविटेशनल लॉक का फंडा है। आप अगर किसी रस्सी को कोई हेवी बॉल बांधोगे और उसको उंगली से घुमाना चालू करो तो बॉल आपको देखिएगा कंटिन्यूसली उंगली को बाहर खींच रहा है और आपकी उंगली उसको अंदर खींच रही है। सोच लो आपने 15 दिन खाना नहीं खाया और 10 किलो का बॉल आप उंगली से रस्सी बांध के घुमा रहे हो, तो वो बॉल आपको लेके उड़ेगा क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं जिससे आप उसको होल्ड करें। ये सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का खेल है जो आपके हाथ के ऊपर चल रहा था। यही खेल चलता है दुनिया में सेलेस्टियल पेयर पे। वहां पे ग्रेविटेशनल है सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ एंगुलर कंपोनेंट, एंगुलर वेलोसिटी में है ना मून, तो वहां पे जो एमवी है वो उसको खींचता है बाहर, कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। जहां भी थोड़ा बैलेंस ऊंच नीच हुआ, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल से कम पड़ा तो सेंट्रीफ्यूगल हल्का हल्का बाहर खींचेगा और उसी के चलते 3.78 सेंटीमीटर के एवरेज रेट से वो दूर जा रहा है सालाना। कुछ दिनों बाद हमको मून नहीं होगा, तो जब आपकी 100वीं पीढ़ी इस पृथ्वी पे रह रही होगी तो उनको बताने के लिए चंदा मामा की स्टोरी नहीं होगी। सर प्लीज, व्हाट इज द ब्लैक होल? ब्लैक होल इज द मास रिकॉर्न टू द सिंगुलैरिटी वेयर इवन लाइट कैन नॉट कम आउट ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। इसके बारे में एडिशनल जानकारी इंटरनेट पे इतनी भर के है कि आप वहीं पे ढूंढो तो बेहतर होगा। टाइम ट्रेवल पॉसिबल इन यूनिवर्स? पहले सब कुछ फिक्शन लगता है और बाद में प्रैक्टिकल होता है। टेम्पररी बेसिस पे इतना बोल सकते हो कि प्रैक्टिकली टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है,
बट टाइम ट्रैवल नाम की चीज के पीछे जो रिलेटिविटी एग्जिस्ट करती है कि भाई टाइम लेंथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टाइम डायलेट्स, ये प्रिंसिपल प्रूव्ड है और इसी के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनसे रिलेटेड लोगों को नोबेल या अच्छे अच्छे प्राइजेस से नवाजा गया। सर व्हाई द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव। मैं बोला ना अभी हमने लास्ट में एक गुत्थी सुलझाई, 95% इज द डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। उस डार्क मैटर का काम है खींचना और डार्क एनर्जी का काम है फैलाना। तो लगता है आज की डेट पे कि फैलाते ही रहेंगे और कुछ दिनों बाद आसमान में तारे भी नहीं। हाउ कुड यू डिफाइन वर्महोल? इट्स अ उल्टा ऑफ द ब्लैक होल। हाउ द साइंटिस्ट विल मेक यूज दिस काइंड ऑफ वर्महोल्स टू कवर एंड ट्रैवल बिलियन एंड ट्रिलियन लाइट ईयर्स। ये बोलते हैं ना कि जब टाइम ट्रैवल करना है तो आपको इस तरीके की ग्रेविटी चाहिए कि वहां पे टाइम को तो रोक दो, या फिर आप दोनों के बीच में एक पैसेज बना दो जिससे अगर ब्लैक होल अंदर ले रहा है चीजें तो वर्म होल उत्सर्जन मतलब इजेक्ट करता है। तो इन दो प्रिंसिपल्स को थेरेटिकली एंड कैलकुलेटिवली करेक्ट रखते हुए ये कॉन्सेप्ट से आप उनके बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। आप भूलना मत, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, न्यूक्लियर फील्ड में इंजीनियरिंग रिलेटेड काम करता हूँ, सिर्फ शौकिया तौर पे एस्ट्रोनॉमी पे बोलता हूँ ताकि लोगों के अंदर जो गलतफहमियां है, बच्चों के अंदर जो अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन है टीचर से, पेरेंट्स से, सरकार से, वो निकल जाए। वो ये समझे कि भाई पहले आपको समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए कुछ करने के लिए मेहनत करनी है, लायक बनाना। उसमें हम सिर्फ आपके सहयोगी हैं, करना सवरना सब कुछ आपको ही है। गैलेक्सीज लुक स्टेशनरी, सो व्हाई, सवाल क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, सो व्हाई डू साइंटिस्ट से दैट दे रोटेट? हर चीज के अंदर आज की डेट पे जो अजम्पशन है प्रूव होने आ रहा है कि ब्लैक होल जैसा मासिव कोई चीज है, और वो चीज ये जो इनिशियली वेलोसिटी और मास के कारण जो mv मोमेंटम है उसके कारण रोटेशन करना ऑब्वियस है। रेजिस्टेंस नहीं है कोई, तो उसके वजह से उनका रोटेट करना कंटिन्यूअस है। जैसे आप देखते हो पृथ्वी भी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, वो 25 दिन में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये इनिशियल जो इनको ऊर्जा इंपार्ट हुई थी उसका नतीजा है। सो नाउ आई विल क्लोज बिफोर दैट रनिंग। एक मिनट, मैं सिर्फ फिर से एक बार मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मैं एक लिंक तिवारी सर को भेज रहा हूँ, उस पर फीडबैक दीजिए। और आपको एकेडमिक्स रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड कहीं भी कुछ जानकारी की जरूरत है तो मेरे संपर्क में बने रहिए। अभी की सारी चार्जेस मैं तिवारी सर को दे रहा हूँ। सर बाकी सवाल मैं व्हाट्सएप माध्यम से बच्चों के साथ जवाब देते रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कर्टस पीरियड एंड टाइम। थैंक यू, बाय बाय। हाँ सर प्लीज। The students, those who have joined and means they have some queries, they will write it to you, and then you will send to Santosh sir. हाँ यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, संतोष सर, थैंक यू सो मच। होपफुली आपके साथ दोबारा हम लोगों को सेशन मिलेगा सर। बच्चे का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है। यस सर, सो यस, थैंक यू सो मच सर। We will be having. Can we have some selective topic as per the need of the students, if it is possible? यस सर, यस सर, वी विल सी। आप आपकी तरफ से कुछ जरूरत है तो मुझे भेज दीजिए। ओके, Okay, sir. Okay, thank you. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू सर।